آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے میئر کراچی کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری اور پیپلز پارٹی رہنما نجمی عالم بھی ہمراہ موجود تھے۔ میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی نے بابا قوم کی آخری آرام گاہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی بھی کی گئی۔ مرتضی وہاب کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے پرامید کہا، تنقید کا جواب ہم نہیں دیں گے، ہمارا کام بولے گا اور کام ہوتا ہوا لوگوں کو دکھائی دے گا۔ ماضی کی طرح اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے، نیک اور اچھے کام کے لیے پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ بالکل، میں کراچی کے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری، ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد اور پیپلز پارٹی رہنما نجمی عالم بھی ہمراہ موجود تھے۔ میئر اور ڈیپٹی میئر کراچی نے بابا قوم کی آخری آرام گاہ پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ مرتضی وہاب کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے کے لیے پرامید ہیں، کہا تنقید کا جواب ہم نہیں دیں گے، ہمارا کام بولے گا اور کام ہوتا ہوا لوگوں کو دکھائی بھی دے گا۔ بات کی اور ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ تنقید کا جواب ہم کام سے دیں گے۔ جتنی تنقید جن کو کرنی ہے ہم اس کا جواب نہیں دینے والے۔ ہم آگے دیکھ رہے ہیں، مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیسے شہر کی عوام کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ تنقید برائے تنقید کرنے سے، تنقید کا جواب دینے سے ہم نہ مسائل حل کر سکتے ہیں نہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کہ ان کو جتنی تنقید کرنی ہے وہ تنقید کرتے رہے، ہمارا کام بولے گا اور کام انشاءاللہ لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم ماضی میں جس طرح اختیارات کا رونا رویا جاتا تھا ہم اس کی بات نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار اس نے خرابی کر دی، یار مل کر کام کرنا ہے۔ یہ اب نفرتیں چھوڑیں، یہ محبت کا شہر ہے، یہ شہر اس ملک کو چلاتا ہے اور ہم لوگوں نے بدقسمتی کے ساتھ یہ پیٹی پالیٹکس کر کے تنگ نظری کی وجہ سے نا اس شہر کو چلنے نہیں دیتے۔ تو خدارا میں یہ کہتا ہوں کہ چاہے جماعت کا، اور کل چیئرمین صاحب نے کہا ہے یہ اپنی پریس کانفرنس میں کہ بلا تفریق کام کیا جائے گا، تو اس میں جو جماعت اسلامی کے ٹاؤن ہے وہاں بھی کام ہوگا، ان کے ساتھ کام کریں گے۔ جو پیپلز پارٹی کے ہمارے 13 ٹاؤن ہیں اس کے اندر بھی انشاءاللہ کام کریں گے، اور جو پی ٹی آئی کے ٹاؤن ہے نا اس میں بھی کام کریں گے۔ تو ہم نے تو کل سے کیا کہ کام اور انشاءاللہ صرف کام۔ مرتضی وہاب کی میئر کراچی کی حیثیت سے تقرری کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت، محمد عامر کی درخواست بھی میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کی درخواست کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ اب ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، مرتضی وہاب کی میئر کراچی کی حیثیت سے تقرری کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت، محمد عامر کی درخواست پر بھی میئر کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان کی درخواست کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے۔ بات کریں گے ممتاز جمالی سے۔ ممتاز، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیں جی، آج ضلع کوٹ کراچی میں مرتضی وہاب کی میئر کی حیثیت سے تقرری کو نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ محمد عامر کی درخواست پر بھی میئر کے امیدوار حافظ نعیم کی درخواست کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہے، جبکہ درخواست کے ناقابل سماعت ہونے پر عدالت نے جو درخواست کر کے وکیل سے استفسار کیا کہ ایسے ہی درخواست حافظ نعیم الرحمان کی ہے جو پہلے زیر التوا ہے، جس پر وکیل نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ درخواست گزار جو ہے وکیل ہے اور کراچی کا شہری ہے۔ اس درخواست میں کچھ نئے نکات شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں 16 جون کو میئر اور ڈپٹی میئر کے تقرری کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا گیا تھا، جبکہ حافظ نعیم کی درخواست میں لوکل باڈیز ایکٹ میں جو ہے ترمیم کی گئی تھی، ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ان کا یہ بھی موقف ہے وکیل کا کہ یہ قانون 12 مئی کو منظور ہو گیا، جبکہ بل جو ہے وہ 15 مئی کو تیار ہوا تھا۔ یہ واضح طور پر بدنیتی پر مبنی قانون ہے، بدنیتی ریکارڈ پر پیش کر دی گئی، لہذا عدالت نے درخواست 22 جون کو سماعت کے لیے ملتوی کرتے ہوئے فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ جی بہت شکریہ ممتاز جمالی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا پیپلز بس سروس کی ایپ 22 جون سے لانچ کرنے کا اعلان ہے۔ صارفین آن لائن بکنگ، روٹ، کرایوں اور دیگر ضروری معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ پیپلز بس سروس کو انٹیلیجنس ٹرانسپورٹ سسٹم کے تحت چلانے اور آن لائن سسٹم سے جوڑنے کا فیصلہ، شرجیل انعام میمن کے الیکٹرک بسز کے چارجرز کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت۔ اب آپ کو بتائیں کہ اپریل کے مقابلے مئی میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 7% اضافے سے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر رہیں۔ مئی 2022 کے مقابلے مئی 2023 میں ٹیکسٹائل میں 20% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال 11 ماہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدات 15% کمی سے 15 ارب 3 کروڑ ڈالر ہی رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے پاس نمائندے موجود ہوں گے، اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اپریل کے مقابلے مئی میں ٹیکسٹائل کی برآمدات 7% اضافے سے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر رہی ہے۔ بات کریں گے اشرف خان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اشرف۔
जी देखा जाए पाकिस्तान टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात की रिपोर्ट सामने आ गई। अप्रैल के मुकाबले मई में टेक्सटाइल की बरामदात 7% इजाफे से $1 अरब 32 करोड़ डॉलर रही है, जबकि मई 2022 के मुकाबले मई 23 में पाकिस्तानी रुपए में टेक्सटाइल की बरामदात जो है 377 अरब रुपए रही है। मई 22 के मुकाबले मई 23 में वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की बरामदात 3% इजाफे से 88 करोड़ 90 लाख डॉलर रही है। गुज़िश्ता माह के मुकाबले तौलिए की बरामदात 10% और गारमेंट्स और रेडीमेड गारमेंट्स की 8%, नेटवेयर की 3% का इजाफा हुआ है बरामदात में। अप्रैल के मुकाबले मई में बेडवेयर की बरामदात में 8% कमी हुई है। अप्रैल के मुकाबले मई में टेक्सटाइल के ऑर्डर में यार्न और क्लॉथ की बेहतरी देखी गई है। और यहाँ पे सबसे बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट के रवा माली साल 11 माह में टेक्सटाइल की बरामदात 15% कमी से 15 अरब 3 करोड़ डॉलर रही और रवा माली साल के इख्तिताम तक यानी कि 30 जून 2023 तक जो टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 16 से 16.5 अरब डॉलर के दरमियान रहने की तवक्को है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। नायब सदर FPCCI हाजी मोहम्मद यकूब का हुकूमत से इंटरेस्ट रेट सिंगल करने का मुतालबा किया गया है। इनका कहना है कि शरह सूद कम ना होने की सूरत में मुआशी हालात परेशान कुन हो जाएंगे। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक की बात करें तो मुख्तलिफ ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट इस वक्त जो है वो 21% पे है, जो कि रीजन में दीगर ममालिक के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रीजन में कहीं पर जो इंटरेस्ट रेट है किसी मुल्क का 2% है तो कहीं पर 6% है। इस हवाले से हम मालूम करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त 21% है, इस पर जो सनतकार हैं उनको बिज़नेस करना, अपनी तजारती सरगर्मी को जारी रखना कितना मुश्किल हो गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं FPCCI के नायब सदर हाजी मोहम्मद याकूब साहब, क्या कहेंगे 21% रेट पे आप लोग कारोबार कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग हो गया आप लोगों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात में जो बजट दिया गया है वो मुश्किल तरीन बजट है, लेकिन इससे अलावा चारा भी कोई नहीं था। इसमें बहुत सारी अहमियत है, ख़ास तौर से इंटरेस्ट रेट जो है कोई कारोबारी या इंडस्ट्री वाला जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। फेडरेशन का मुतालबा है कि इस रेट को कम किया जाए। ख़ास तौर से देखें कि इम्पोर्टर और इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर जो है, कमर्शियल इम्पोर्टर और इंडस्ट्रियल इम्पोर्टर के रेट में बड़ा फ़र्क है, इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, जिसकी वजह से कमर्शियल इम्पोर्टर का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। हमारा मुतालबा ये है कि दोनों को एक रेट किया जाए, क्योंकि कमर्शियल इम्पोर्टर भी इंडस्ट्री को ही सप्लाई करता है। उसकी वजह से कमर्शियल इम्पोर्टर जो है वो कारोबार बंद करने पर मजबूर है। इंटरेस्ट रेट जो है बतदरीज कम किया जाना चाहिए और इसको सिंगल डिजिट में लाना चाहिए ताकि कारोबार फ़रोग पा सके, और जब कारोबार और इंडस्ट्रियाँ लगेंगी तो बेरोज़गारी दूर होगी। अगर इस पर तवज्जो नहीं दी गई तो बेरोज़गारी बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान में हालात परेशान कुन होते जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे हाजी मोहम्मद याकूब साहब, जिनका मुतालबा है कि इंटरेस्ट रेट को फौरी तौर पर सिंगल डिजिट पे लाया जाए ताकि कारोबार को फ़रोग़ मिल सके, सनतें लग सकें और रोज़गार के वसी तर मौक़े जो हैं वो पैदा हो सकें। जी, हुकूमती इक़दामात की वजह से मुसलसल तीसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। मई 2023 में करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा, जो कि अप्रैल 2023 में 7 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस था। हुकूमती इक़दामात मुल्क की मईशत के बड़े चैलेंज में करंट अकाउंट खसारे से मुसलसल तीसरे माह सरप्लस रहा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मई 23 में करंट अकाउंट 25 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस रहा और अप्रैल 23 में करंट अकाउंट 7 करोड़ 80 लाख डॉलर सरप्लस था, जबकि मई 22 में करंट अकाउंट 1 अरब 50 करोड़ डॉलर खसारा था। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल 11 माह में करंट अकाउंट खसारा 2 अरब 94 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 11 माह में करंट अकाउंट का खसारा 15 अरब 16 करोड़ डॉलर था और गुज़िश्ता माली साल 11 माह के मुकाबले रवा माली साल 11 माह में करंट अकाउंट खसारे में 81% की रिकॉर्ड कमी हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की जानिब से गैर ज़रूरी दरामद पर पाबंदी आयद करने के मुस्बत असरात मुरतब हुए। और यहाँ आपको बताएं कि बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर आई है। सरकारी बिजली कंपनियों और के इलेक्ट्रिक के सारिफीन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान है। CPPA के इलेक्ट्रिक ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी हैं।
बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। हर एक के लिए ये बुरी खबर है जो भी बिजली इस्तेमाल करते हैं। आम घरों में इस्तेमाल होती है बिजली और ये ज़रूरत की चीज़ है जो कि महंगी से महंगी होती जा रही है। सरकारी बिजली कंपनियों ने और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान है। CPPA के इलेक्ट्रिक ने अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई है। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर सामने आई है। बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान है। सरकारी बिजली कंपनियों और के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान है। सरकारी बिजली कंपनियों के सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपये 5 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। कुछ बात कर लेते हैं। ईद कुर्बां आते ही शहर में जानवरों की लूट मार का सिलसिला जारी है। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 चिश्ती नगर में व्यापारी से 4 मवेशी असलहा के जोर पर छीन लिए गए हैं। 4 रोज कबल मवेशियों की लूटमार की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई थी। आपको अपडेट करते चले हैं। ईद कुर्बां की आमद है और ऐसे में शहर में जानवरों की लूटमार का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच गया है। औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 चिश्ती नगर में व्यापारी से 4 मवेशी असलहे के जोर पर छीन लिए गए। 4 रोज कबल मवेशियों की लूटमार की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल की थी। ईद कुर्बां की आमद है। शहर में जानवरों की लूटमार का सिलसिला भी जारी है। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बां में चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं और कराची में अगर व्यापार आता है अपने माल मवेशी लेकर तो उसके जानवरों की चोरी और असले के जोर पर छीनने की वारदातों का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में मौजूद हूँ और ये चिश्ती नगर का इलाका है जहाँ वो ठट्टा का रिहायशी जो कि कराची लाकर अपने माल मवेशी बेचना चाहता था, लेकिन नामालूम मुल्ज़िमान उसका मवेशी असले के जोर पर लूट कर ले गए। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा शख्स, मुतासरा व्यापार हनीफ मौजूद हैं। क्या वाक़या पेश आया था, मुझे थोड़ा सा तफसीली बताएगा। हाँ सर, आया हुआ था। 8 बंदे थे और 4 बाइक थी, मोटरसाइकिल थी। जैसे आया हमारा रात को बंदे को बांध के बस बाइक से लेके 4 जानवर से बड़ा हमारा निकाल के और हमारे बंदे को भी लेके चला गया था। फिर जाके उधर रास्ते में उसको छोड़ के आँख बाग उसका बांधा हुआ था, फिर उसको छोड़ के उधर ही चला गया था। 4 हमने बहुत कोशिश भी किया, बहुत ढूंढा। पुलिस से भी हमने उसी टाइम में इतला किया था। पुलिस भी जैसे ना 15-20 मिनट बाद में पहुंची है। पहले पहुंच जाता था हो सकता है हमारा जानवर बच जाता। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आला हुक्काम से? क्या करें अभी हम तो कैसे जा भी नहीं सकते। हम तो एक जानवर करके उधर से खरीद लाते हैं। अभी ऐसे हम जाएंगे तो गाँव में तो हमारे को तो बंदा छोड़ेगा ही नहीं। वो बोलेगा बाबा हमारे को जानवरों का पैसा दो। अभी हम पैसा कहाँ से देंगे उन लोगों को? वो जो जानवर चोरी हुए हैं उनकी मालियत कितनी होगी कम से कम? मतलब 4-4, 5-5 मन के जानवर है एक हमारा। उधर से हमने लेके आया हूँ, 6 लाख में लेके आया हूँ। अभी इधर से हम लोग ज़ाहिर हम लोग तो इतने में भेजेंगे, हमारा भाड़ा किराया खर्चा। अभी अपने वैसे बैठे हुए हैं अभी। जी बिल्कुल, 5 लाख से ज़ायद मालियत का इनको नुकसान हुआ है और जो CCTV फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें वाज़ेह तौर पर नामालूम मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। वो गली में दाखिल होते हैं, 4 मोटरसाइकिलें होती हैं और 8 मुल्ज़िमान होते हैं और घर पर और इस खाली प्लॉट पर जो है धावा बोलते हैं। ये वो खाली प्लॉट है जिस पर अभी जो है जो बच जाने वाले जो मवेशी हैं मौजूद हैं। 13 कुर्बानी के जानवर लाए गए थे यहाँ पर और उसके बाद जो जब चोरी हो गए, जो डकैती की वारदात हुई है उसमें जो है नामालूम मुल्ज़िमान 4 जानवरों को पैदल ही लेकर फ़रार हो गए। ताहम पुलिस अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि इस वाक़े का मुकदमा इकबाल मार्केट थाने में जो मुतासरा शख्स है हनीफ, उसकी मुद्दत में दर्ज कर लिया है। पुलिस दावा कर रही है कि जो CCTV फुटेज मंजर है उसकी मदद से मुल्ज़िमान को तलाश किया जा रहा है। जी, ईद कुर्बां में चंद दिन बाकी रह गए हैं। नौदन बाईपास की मवेशी मंडी में मुनफरिद बछड़े की धूम है। जानवर का वजन 18 से 20 मन बताया जा रहा है। शहरियों का मुनफरिद जानवर देखने के लिए तांता बन गया है। मज़ीद बात करेंगे, वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान अहमद, उनसे मज़ीद जानते हैं। रिजवान, कैसी गहमा गहमी आप देख रहे हैं? खूबसूरत जानवर भी वहाँ पर मौजूद हैं।
जी बिल्कुल, नादरन बाईपास पर जो मवेशी मंडी सजाई गई है, शहर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी, यहाँ की रौनकें जो हैं दिन ब दिन दुबाला होती जा रही हैं। उसकी वजह यह है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में अब चूँकि सिर्फ 9 रोज़ बाकी रह गए हैं, इस हवाले से शहरियों की आमदोरफ्त जो है वो यहाँ बढ़ चुकी है कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से, और भाव ताव और ये दीगर मामला जो हैं यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ गई हैं। खूबसूरत और मुनफरिद जानवरों की अगर बात की जाए तो शहर में कई मकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फौकियत हासिल है वो नादरन बाईपास की जो 700 एकड़ से ज़ायद रकबे पर मवेशी मंडी है यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपको कि 5 लाख से ज़ायद बताया जाता है यहाँ पे कुर्बानी के जानवर जो है वो लाए गए थे, जिसमें से निफ्स जो हैं वो फ़रोख्त किए जा चुके हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहरियों की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है और ख़रीदारी में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी दिखाई दे रही है। मुनफरिद जानवरों की अगर बात की जाए तो इस वक्त माजी कैटल फार्म से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुनफरिद जानवर मेरे कैमरामैन इब्राहिम आपको दिखाएंगे कि ये एक बछड़ा है, चोलिस्तानी बछड़ा, जिसका वज़न तकरीबन 18 से 20 मन बताया जाता है। मुनफरिद बात यह है कि अल्लाह का नाम इसके चेहरे पर जो है वो नक्श है, और इसके सिलसिले में यहाँ का जो इसका यहाँ पे जो इसके ऑनर हैं उनका कहना यह है कि वो इसकी कीमत तलब नहीं कर रहे हैं बल्कि हदिया मांग रहे हैं। 1 करोड़ रुपए इसकी जो है वो हदिया रखा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कौन सी नस्ल का ये बछड़ा है, कितनी इसकी उम्र है, और ये जो नाम नक्श है इस हवाले से शहरियों का क्या तासुरात हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं आप? जान, इसकी नस्ल जो है वो चुलिस्तानी नस्ल है, और इसकी डिमांड नहीं है, इसकी हदिया शुक्रानिया 1 करोड़ रुपया। और आवाम जैसे आपने बोला वो बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत भीड़ होती है, हर वक्त इसको देखने के चक्कर में रहती हैं। दिन को भी बड़े आते हैं, रात को उससे ज़्यादा आते हैं। नहीं, इसके अब तक जो आप जो हदिया 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, अब तक इसकी जो है कितनी ऑफ़र आपको मिल चुकी है? ऑफ़र तो बहुत मिल चुकी हैं, काफ़ी लोग कुछ भी बोल देते हैं और किसी से के बोलने से कुछ नहीं होता। मज़ीद बहुत लोग कह, डिमांड तो आपकी 1 करोड़ रुपए है, क्या आप किस कीमत में इसको जो है वो फ़रोख्त करेंगे? देखिए, ये तो हदिया शुक्राना है ना, तो हमारी कोशिश है कि कम से कम आधा से ऊपर तो होना चाहिए। अच्छा, ये भी मुझे बता दें, चूँकि आप हदिया कह रहे हैं इसको, तो ये हदिया जब मिलेगा तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कोई नेकी का काम भी करना पड़ेगा, तो आपने क्या सोच रखा है इस हवाले? ये इसके बारे में हमने सोचा है कि हमारे अपनी मस्जिद एक बन रही है, मस्जिद की तामीर है, छत की, उसमें हिस्सा डालेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म हुआ तो। इसकी उम्र कितनी है, इसकी खुराक में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और वज़न जो है वो एक्चुअल वज़न इसका कितना है? वज़न इसका तकरीबन 18 से 19-20 मन होगा, और खुराक में इसको दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, मकई के, गंदम के, खल, चोखर और तूड़ी। हम इसको हरा नहीं देते, इसको देसी खुराक दे रहे हैं, और फार्म पे इसको हमने रखा हुआ है। गांव का जानवर नहीं है, कराची शहर का जानवर है। बिल्कुल, बताया जाता है कि ये शहर जो है वो कराची में ही पला बड़ा है, और इसकी खुराक का और इसकी देखभाल का जो है वो खुसूसी तौर पर इंतजाम किया जाता है। ख़ास बात इस जानवर की ये भी है कि ये रफ़ा हाजत के बाद जो है अपने पैरों के ज़रिए उस पर मिट्टी भी डालता है। इस मुनफरिद जानवर को देखने के हवाले से बताया जाता है कि शाम के औकात में बेपनाह रश जो है वो शहरियों का इस फार्म हाउस पर दिखाई देता है, और हज़ारों जो अफराद हैं वो इसको देख रहे हैं और ख्वाहिश का इजहार भी कर रहे हैं कि इसको ख़रीद सकें, लेकिन चूंकि डिमांड ज़्यादा है तो अब देखना यह है कि किस खुश नसीब के हिस्से में ये जानवर आता है। जी रिजवान, ये बताएगा कि मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, लेकिन नादरन बाईपास पर सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई गई है, और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर चोरी का सिलसिला तो नहीं होता, लेकिन जब यहाँ से जानवर लेकर लोग निकलते हैं तो चोरी की वारदातें पेश आती हैं। दूर भी बहुत है ये, तो रास्ते में किस तरह से लोग इनको लेकर जाते हैं और क्या सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, चूँकि ये मवेशी मंडी हमेशा से सुपर हाईवे पर लगाई जाती थी। इस मरतबा जो है वो नादरन बाईपास का इंतखाब किया गया है। 700 से ज़ायद एकड़ की ये अराज़ी है। पहली मरतबा ऐसा हुआ तो आगाज़ में कुछ इक्का दुक्का वाक़यात ज़रूर हुए थे, लेकिन पुलिस और रेंजर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है, और जगह जगह जो है वो पुलिस के और रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो मौजूद हैं। तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि जो अब
अमल है जानवरों की ख़रीदारी के हवाले से और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के हवाले से जो शहरियों की आमदोरफ्त है, तो उनके रास्तों को महफूज बनाया गया है। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि रश जो है वो बढ़ चुका है और मरकज़ी जो शाहराह है शाम के औकात में खुसूसन यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि ये नादरन बाईपास जो है वो हेवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त का भी ज़रिया है। सनतों के मुख्तलिफ बैरून शहर जो आने वाले बड़े बड़े ट्रॉलर हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, तो ट्रैफिक फ़्लो का जो है वो ज़रूर शहरियों को सामना करना पड़ रहा है। ताहम जो छीना झपटी के जो वाक़यात थे और स्ट्रीट क्राइम थे उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया गया। जी अच्छा रिजवान, ये भी बताएगा, खूबसूरत वाइट कलर के बकरे हम देख रहे हैं, इसकी क्या कीमत है वहाँ? आप बिल्कुल बकरों की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ नस्ल के यहाँ पे मुनफरिद बकरे भी मौजूद हैं, और जैसा कि हम गाए बगाए अपने नाज़रीन को आगाह भी करते रहें, 50 लाख रुपए तक का यहाँ पर बकरा जो है वो मौजूद है। भारी भरकम बकरे हैं, खूबसूरती में नुमायाँ हैं, और जितनी खूबसूरती है उतनी ही इसकी जो है वो डिमांड भी व्यापारियों की जानिब से की जा रही है। भाव ताव का सिलसिला जारी है और कई सौदे भी जो है इस सिलसिले में हमने देखा कि हो भी चुके हैं। अच्छा रिजवान, हम देखते हैं कि एक तरफ शहरी जो है वो रोना रोते भी दिखाई दिए हैं कि बहुत महंगे बकरे भेजे जा रहे हैं पिछले साल की निस्बत, लेकिन दूसरी जानिब गहमा गहमी भी हम देख रहे हैं, तो क्या भाव ताव में शहरियों की मानी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में जो शहरी हैं उनका शिकवा अपनी जगह जायज़ है। जिस तरह हर चीज़ में महंगाई का अंसर जो है वो दिखाई देता है, इसी तरह जानवरों की जो फ़रोख्त है उसके हवाले से भी शहरियों का ये शिकवा है कि माजी के मुकाबले में 2 से 3 गुना जो है नर्ख ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसके ताजिर हैं और जो इनके पालनहार हैं उनका ये कहना है कि चूँकि तमाम अशिया में जो है वो इजाफ़ा हो चुका है, इनकी खुराक जो है और इनकी देखभाल, इसके तमाम अखराजात बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से लामहला ये इजाफा जो है उनको करना पड़ रहा है। जी रिजवान, ये बताएगा कि जिस तरह से आप एक कैटल फार्म पर मौजूद हैं, वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, टोटल कितने कैटल फार्म बनाए गए हैं? अब बिल्कुल देखिए, यहाँ पे 11 ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं इस पूरी मवेशी मंडी में, जिसमें 2 VIP ब्लॉक हैं और 11 के 11 जो ब्लॉक्स हैं वहाँ पे दर्जनों की तादाद में जो है वो ऐसे फार्म हाउस बने हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुख्तलिफ़ इक़साम के जो जानवर हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ पोर्शन बनाए गए हैं। गाय बैल जो हैं उनके ब्लॉक्स अलग हैं, जबकि बकरे और दुम्बे वगैरह जो है वो अलग ब्लॉक्स में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह सहराई जहाज़ यानी ऊँट जो है उसकी फ़रोख्त का सिलसिला भी जो है यहाँ पे जारी है, लेकिन ज़्यादातर जो शहरियों का रुझान है वो बकरों और बछड़ों की जो ख़रीदारी है उस पर ज़्यादा दिखाई देता है। जी रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, मंडी से मनाज़र दिखा रहे थे, खूबसूरत बकरे, छतरे, गाय भी वहाँ पर मौजूद हैं। भावताओं का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा के करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों की सजावट के सामान के स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं। शहरी गाय बकरे के खूबसूरत मोरे, पायल, जंजीर और दीगर अशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। तफसीलात जानेंगे सैयद नुमान गुल से। बिल्कुल, ईद कुर्बा जैसे जैसे करीब आ रही है इसकी तैयारियां भी उसी तरह जारी और सारी हैं। मैं इस वक्त महमूदाबाद में मौजूद हूं, जहां पर गाय की सजावट का सामान मेरे अक़ब में मौजूद है। गाय की सजावट के हवाले से उसकी पायल हो, उसका मोहरा हो, उसके ऊपर फूल लगाने का जो सामान है, ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो है इस दुकान पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस दुकान के जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ज़रा इसका ये जो रेट है, इनकी क्या रेट है और क्या क्या सामान आपके पास है? इधर देखकर। माशाल्लाह इनके मुनासिब रेट हैं। मोहम्मद ताहिर की दुकान है ये, महमूदाबाद 3 नंबर सिंध बैंक के सामने। ये आप जो मोहरा देख रहे हैं ये 200 रुपये का है। इसके साथ जो हार लगे हुए हैं ये 70 रुपये के हार हैं। माशाल्लाह हर चीज़ होलसेल में रखी हुई है, दाने से लेकर जंतर, लूसन, मशीन वगैरह हर चीज़ रखी हुई है। अच्छा मुझे बता दीजिएगा, पायल होते हैं, दीगर जो चीज़ें होती हैं गाय की, उनकी क्या कीमतें? पायल की कीमत है हमारे पास 80 रुपये की जोड़ी है बकरे की पायल की। जानवर की जोड़ी है 120 रुपये की पायल की, और बाकी जो है भैंस वगैरह की हैं ये 150 रुपये की जोड़ी है। यकीनी तौर पर सजावट का सामान इस वक्त जो है वो पहुंच चुका है। शहरियों की जानिब से ये सामान ख़रीदा भी जा रहा है क्योंकि मुनासिब रेट पर मिल रहा है। इस वजह से जो है वो शहरी इसकी डिमांड में भी इजाफ़ा हो गया है और शहर कराची के मुख्तलिफ़ मकामात पर सजावट के जो स्टॉल्स हैं वो भी लगना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है तैयारियाँ भी उसी तरह जारी है। जी
ईद कुर्बान की आमद मंडियों में भाव-ताव का सिलसिला भी तेज हो गया है। कोरंगी की मवेशी मंडी में भी खरीदारों ने कीमतें नामुनासिब होने का शिकवा किया है। मजीद बात करेंगे, मोहम्मद माजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोरंगी की मंडी में। यहाँ पर क्या सूरत हाल है ख़रीदारी के हवाले से? मेरे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, लोग आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए? आ रहे हैं लोग, लेकिन बहुत कम, क्योंकि महंगाई में बहुत ज़्यादा है और उनको भी जानवर जो है महंगे लग रहे हैं, क्योंकि हालांकि ज़ाहिर हमने ख़रीदे हैं, अपना कुछ इन्वेस्टमेंट की है, हर चीज़ महंगी है, तो हमने जानवरों की कीमत भी बहुत मुनासिब रखी है, लेकिन उनकी ख़रीद से ज़्यादा है और महंगाई की वजह से लोग जो है कुछ कम है। शाम में कुछ लोग ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ चहल पहल हो जाती है। खरीदारों का ये शिकवा है कि जो कीमत है वो जो जानवर का साइज़ है उससे ज़्यादा हमसे वसूल की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कीमत जो है उसकी मुनासिब है। अब पहले आटा कुछ था, अब आटा कुछ हो गया है, समझे। दूध के रेट देख लें आप, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। चोकर 100 रुपये किलो है यहाँ पे, घास इतना महंगा है और हर चीज़ में अखराजात ही अखराजात हैं, तो ज़ाहिर है हमने भी कुछ उसकी कीमत रखनी है। 700 रुपये मन घास है। ये है कि बहरहाल वो लगता है ख़रीदार को, लेकिन ये कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ख़र्चा है जानवरों का वो ज़्यादा है, घास की कीमत बढ़ गई है, इसके अलावा चोकर की कीमत बढ़ गई है, खुराक का जो ख़र्चा है, इसके अलावा टैक्सेस वगैरह पिछले साल की बनिस्बत इस साल ज़्यादा है। इस वजह से जो है हमने उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कीमत मुकर्रर की है, जो कि एक मुनासिब कीमत है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बान के मौके पर हुकूमत की जानिब से कैदियों की सज़ाओं में रियायत की जाती है। ये रियायत किस नौयत के मुजरिमों को मिलती है और कौन से मुजरिम इससे महरूम रहते हैं, बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। जिस तरीके से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा की आमद है, ईद के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मुकदमात में सज़ा पाने वाले मुजरिमान की सज़ाओं में रियायत का हुक्मनामा जारी किया जाता है, या फिर मुख्तलिफ मुकदमात में कैदियों को जो है वो रिहा भी किया जाता है। किस नौयत के वो मुजरिमान होते हैं, किस नौयत के वो मुकदमात होते हैं, इसकी तफसील जो है आज हम कानूनी माहिरीन से पता करेंगे। सीनियर एडवोकेट मज़हर अली साहब इस वक्त हमारे साथ सिटी कोर्ट में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे पता करेंगे। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके कीमती वक्त के लिए, क्या बताना चाहेंगे? सर ये जो हर साल तकरीबन ईद के दिनों में नोटिफिकेशन निकलता है, सदर पाकिस्तान निकालते हैं ये नोटिफिकेशन। इसमें जितने भी छोटे या बड़े केस होते हैं उसमें रिलीफ होता है। ख़ास तौर पे अगर किसी का 3 महीने का पीरियड हो, थोड़ा सा ज़्यादा बच रहा है पीरियड, उनको भी उसके अच्छे अखलाक के बुनियाद पर उसको रिलीज़ किया जाता है। या किसी के ऊपर पेनल्टी है, क्योंकि कभी कभी सज़ा कोर्टें ऐसी भी देती हैं जिसके ऊपर सज़ा भी होती है, उसके साथ पेनल्टी भी होती है, लेकिन उन गरीबों के पास पेनल्टी के पैसे नहीं होते हैं। तो जिन लोगों के अच्छे अखलाक होते हैं उसकी पेनल्टी भी ख़त्म की जाती है, माफ़ की जाती है। सदर पाकिस्तान की तरफ से उसको भी रिहा किया जाता है जेल के अंदर से। ज़्यादा ख़ास तौर पे जो लेडीज़ जो होती हैं उनको तो ज़्यादा रिलीफ दिया जाता है। अगर उनकी 2 महीने की, अगर सदर पाकिस्तान 2-3 महीने की सज़ा माफ़ कर रहा है तो उसमें लेडीज़ के लिए तो ज़्यादा भी रिलीफ किया जाता है, उससे 4 से 5 महीने भी हो सकता है। वो सदर पाकिस्तान के हाथ में। इसमें छोटे बच्चे हो चाहे बड़े हों, उस पर ज़्यादातर फोकस अच्छे अखलाक वाले के ऊपर होता है। बाकी जो बच्चे दूसरे ATC के केस होते हैं, दहशतगर्दी के केस होते हैं, एनकाउंटर के केस होते हैं, उसमें ये रिलीफ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये बड़े दहशतगर्दी केस होते हैं, वो सिक्योरिटी रिस्क होते हैं हमारे लिए। और जो ज़्यादा हैप्चुअल केस होते हैं, जिस तरह एक छोटे स्नैचिंग के केस भी हों, उसके ऊपर 5-6 FIR कटी हों और मुख्तलिफ केसों में उसको सज़ा भी आ चुकी हो, उनके ऊपर भी रिलीफ नहीं बनता। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मज़हर अली हमारे साथ मौजूद थे सिटी कोर्ट में। जिस तरीके से इनकी जानिब से बताया गया कि ईद के दिनों में तकरीबन 1 से 3 महीने का जो है वो रिलीफ मुजरिमान के लिए दिया जाता है, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी ATC के जो केसेस होते हैं उनके अलावा ये रिलीफ जो है वो मुजरिमान को दिया जाता है। जी। और जनाब, वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। 29 जून से 1 जुलाई तक ईद की छुट्टियां होंगी। अपडेट करते चलें आपको, वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। 29 जून से 1 जुलाई तक ईद की छुट्टियां होंगी। तफसीलात जानेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस कियानी, अपडेट कीजिएगा। देखें, ईद उल अज़हा के मौके पर 3 सरकारी तातीलात का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने जो है नोटिफिकेशन किया है। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए 29 और 30 जून को छुट्टी होगी,
जबकि हफ्ते में 6 रोज काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए 29 जून से 1 जुलाई तक जो है वो छुट्टी है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इतवार की छुट्टी भी बीच में आ रही है, तो टोटल तो 4 छुट्टियां हो जाती हैं। अवैस कियानी हमें अपडेट कर रहे थे, छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। 3 छुट्टियां हैं, 29 जून से 1 जुलाई तक ईद की छुट्टियां अनाउंस हुई हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी कर दिया जाएगा। तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। 3 छुट्टियां ईद उल अज़हा के लिए रखी गई हैं और इतवार की छुट्टी मिलाकर तो टोटल 4 हो जाएंगी, लेकिन हुकूमती सतह पर 3 छुट्टियां जो हैं नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया है। ईद कुर्बा की आमद है। ईद उल अज़हा की तातीलात का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। ईद उल अज़हा पर 29 जून से 1 जुलाई तक तातीलात होंगी। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता तातीलात होंगी। हफ्ते में 5 वर्किंग डेज़ वाले दफातर में 29 और 30 जून को ईद उल अज़हा की तातीलात होंगी। तफसीलात से आगाह कर रहे थे अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। शहीद कवाल अमजद साबरी के साथी सलीम साबरी कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दर्द भरी आवाज़ और जानदार आलाप के माहिर चंदा भाई गली गली चने फ़रोख्त करने लगे हैं। बात करेंगे शुएब मुख्तार, इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं। जी शुएब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मारूफ कव्वाल शहीद अमजद साबरी के करीबी साथी मोहम्मद सलीम साबरी के साथ मौजूद हूँ। आज ये जो है नहायत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सड़कों पर ये चने बेचने पर मजबूर हैं। माली हालात जो हैं इनके काफ़ी ख़राब हैं और जिस वक्त अमजद साबरी को शहीद किया गया था उस वक्त भी ये गाड़ी में उनके साथ मौजूद थे। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे आखिर ये नौबत कैसे आई और इनकी इमदाद की किसी ने कोशिश की। बात ये है कि ऐलान तो हमारे मुल्क में क्या कहते हैं कि आसान है कह देना, लफ्ज़ आसान है कि ये मैं फ़लाँ के लिए, ये फ़लाँ के लिए, लेकिन देते हुए तो कुछ नहीं है मेरे लिए। 15 सिंध और वफाक की तरफ से ऐलान था ज़ख्मी के लिए, जो खाली ऐलान ही था, वफा नहीं हुए। 15 सिंध ने किए थे और 15 लाख कायमली शाह थे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब थे। तो 15 सिंध वफाक ने ऐलान किया था, जो खाली ऐलान ही था, अभी तक नहीं मिले। एहतजाज भी कर चुका हूँ, बल्कि CM हाउस पे भी मैंने, जब मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे और सरदार साहब थे, उनके PA अरशद भट्टी साहब, जिन्होंने कहा कि जी ये हमारे अमन के एम्बेसडर हैं, इनके दुख का मदावा करेंगे। उसी दिन 10 लाख रुपए दिए थे। एक बच्चे के बाजू एक्सपायर हो गए थे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग गए थे। तो अकरम बलोच साहब किसी चैनल से थे, उन्होंने कहा मुर्तज़ा वहाब साहब से कि ये सलीम साबरी इनका पुराना केस है, लिहाजा इनके लिए भी कुछ मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा इनके दुख का मदावा करेंगे मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जो अभी दोबारा उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। बस ये हालात अच्छे होते तो मैं किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता कि ये चने इसलिए कि बच्चे हैं, बच्चों का साथ है। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे, 1 लुगाई, चंदा भाई जी। नहीं जी, कोई नहीं पढ़ा, सब बच्चों को निकाल दिया गया है क्योंकि अपना अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। या तो मकान का किराया दूँ या बच्चों की फ़ीस। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बच्चों की फ़ीस अदा ना करने के बायस जो है उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। ये किराए के मकान पर रहते हैं। अमजद साबरी जो है इन्हें चंदा के नाम से पुकारा करते थे और आज उनका चंदा जो है नहायत कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहा है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनकी माली मदद की जाए। जी। जामिया कराची में मालियाती बदइंतज़ामी के बायस अंजुमन असातिज़ा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। अंजुमन असातिज़ा ने जामिया कराची में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी ज़ुबैर। जी बिल्कुल, जामिया कराची मादर इल्मी जामिया कराची को शदीद माली बहरान का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, जिसकी मुनासिबत से अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची की जानिब से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की जा रही है, जिसमें माली बहरान के जो खदशात हैं, जो कि मामलात यूनिवर्सिटी को पेश आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त ताज़ा तरीन, ये तमाम तर चीज़ों से मुतल्लिक जो है आगाही आज मीडिया को फराहम की जाएगी। अंजुमन असातिज़ा ने इससे पहले भी जो है एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए थे, आवाज़ भी उठाई थी, लेकिन हुकाम आला तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन इस दफ़ा दोबारा से जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है, जिसमें जामिया कराची को जो दरपेश मसाइल हैं उसको उजागर किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी गुफरान आलम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अंजुमन असातिज़ा के एक बहुत अहम रुकन है। इनसे जानते हैं कि क्या मामलात हैं और इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल चल रही है। सर, इससे पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, इस दफ़ा क्या मामला है? माली बहरान क्या बहुत
शिद्दत इख्तियार कर गया? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो बहुत खुशाइन बात है कि आपको ये तमाम एहतजाज और तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस याद हैं, और हम गाए बगाए ये सारे एहतजाज इसीलिए करते रहे कि जामिया की जितने भी माली इंतज़ाम हैं, जो माली मसाइल हैं, उन सबको जो है वो बेहतर तरीके से हल किया जाए। लेकिन हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जामिया कराची के डायरेक्टर फाइनेंस साहब जो है वो इसके अहल बिल्कुल नहीं है, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट बढ़ने के बावजूद, तमाम माली मामलात बेहतर होने के बावजूद, ये जो माली इंतज़ामात हैं उसमें कोई बेहतरी नहीं ला सके। इसको देखा जाए तो तकरीबन 2 साल से जो है वो तमाम बिल्स जो हैं वो पेंडिंग पे हैं। असातिज़ा इकराम के जो रिटायर हो रहे हैं उनकी पेमेंट नहीं हो रही, और अगर डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो अब उनकी पेमेंट हाफ से भी कम रह गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टर फाइनेंस जो है वो किसी भी तरह की पेमेंट करने में जो है वो कर ही नहीं पा रहे। तमाम चीज़ें बिल्कुल मुंजमद हैं, और इसी के साथ साथ अगर अपनी मौसूफ का देखा जाए तो तमाम कंटीजेंसी 1 लाख रुपए महीना ये खर्चा कर रहे हैं तमाम, और हालांकि इनके ऑफिस के कोई अखराजात नहीं हैं, ये अपनी सीट पे अक्सर मौजूद नहीं होते। इसी के साथ साथ इन्होंने जो है वो जामिया कराची को एक खेल बना दिया है सिंध गवर्नमेंट और जामिया कराची की इंतजामिया के दरमियान। क्यों इस तरह की मामला जो है पेश आ रहे हैं? इससे कबल जो है मुर्तज़ा वहाब साहब जब जामिया कराची आए थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि वज़ीर आला सिंध से जो है ये तमाम जो मामलात हैं उन तक पहुँचाएंगे, तो कोई पेशरफ नहीं हुई अभी तक। हम भी इसी चीज़ से हैरान है कि जहाँ सिंध गवर्नमेंट जो है वो तालीम दोस्ती का सबूत दे रही है, ग्रांट बढ़ा रही है, वहाँ वो इस तरह के माली मामलात पे तवज्जो देते हुए नज़र नहीं आती। लास्ट टाइम भी आपने देखा, हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से ही बात की थी, जामिया कराची की इंतज़ामिया से ही बात करते हैं, उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन जामिया कराची की अंजुमन असातिज़ा जो है वो हमेशा जो है वो जामिया कराची के मसाइल के लिए सर फहरिस्त आके आती है, और इस दफ़ा हमने जो है वो अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं, और आज हम अपने लाएअमल का भी आइंदा का ऐलान करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दी तो 5 जुलाई से हम शदीद एहतजाज की तरफ जाएंगे। 5 जुलाई से शदीद एहतजाज की तरफ जाएंगे। अंजुमन असातिज़ा जो हैं उन्होंने इस बात को वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अगर उनके खदशात जो हैं वो पूरे नहीं किए गए, उनके मुतालबात जो हैं वो नहीं माने गए, और डायरेक्टर फाइनेंस से मुतल्लिक जो शिकायतें हैं उस पर अगर जामिया कराची और जो ऊपर की इंतज़ामिया है उन्होंने अमल दरामद नहीं किया तो यकीनन शदीद एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हो सकता है तदरीसी अमल भी मुअत्तल कर दिया जाए। ताहम जामिया कराची समेत जो दीगर जामियात हैं जैसे कि वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और जो सरकारी जामियात हैं वहाँ पर ऐसे ही माली शदीद बहरान जो है हमें देखने को नज़र आता है। जी, दूध की कीमतों के तयन के लिए कमिश्नर कराची का इजलास कुछ देर बाद होगा, जिसमें दूध की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। अपडेट करते चलें आपको, दूध की कीमतों के तयन के लिए कमिश्नर कराची का इजलास कुछ देर बाद होगा। काविश मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा, इजलास कब तक होगा, कौन कौन शरीक होगा? जी बिल्कुल, दूध की कीमतों के तयन के हवाले से आज कमिश्नर हाउस में एक अहम इजलास होने जा रहा है, लेकिन अभी तक हमारी डेयरी फार्मर से बात हुई, उनका ये कहना है कि अभी तक कमिश्नर कराची पहुंच नहीं सके। 12 बजे तक का टाइम दिया था कि 12 बजे जो है वो मीटिंग का आगाज होगा। मामला ये है कि 180 रुपये इस वक्त सरकारी कीमत चल रही है दूध की, लेकिन इस हवाले से जो डेयरी फार्मर्स हैं वो अपने मुतालबात की हद में डट चुके हैं। उनका ये कहना है कि किसी तौर पर भी सरकारी कीमत पर दूध फरोख्त नहीं करेंगे, चाहे फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, सरकारी कीमत पर दूध की फरोख्त नहीं होगी। बल्कि ये मुतालबा कर दिया गया है कि 50 रुपये लीटर तक जो है वो सरकारी कीमत को बढ़ाया जाए, यानी कि 180 रुपये इस वक्त सरकारी कीमत है। तो ये डेयरी फार्मर्स की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि 230 रुपये लीटर जो है सरकारी कीमत कर दी जाए। इस वक्त शहर में 210 से 220 रुपये तक दूध की फरोख्त जो है वो लीटर के हिसाब से जारी है, और ये खदशे का इज़हार किया जा रहा है डेयरी फार्मर्स की जानिब से कि अगर कमिश्नर कराची आज मीटिंग में नोटिफिकेशन जारी करके कीमतों में इजाफे का ऐलान नहीं करते तो फिर कुछ साख्ता या मनमानी के जोर पर जो है वो डेयरी फार्मर इजाफा कर देंगे, और शहर में दूध जो है वो मजीद महंगा होने का खदशा है। 230 रुपये लीटर तक इस खदशे का इजहार कर दिया डेयरी फार्मर से जब हमारी बात हुई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कंज्यूमर एसोसिएशन अभी मैदान में आ चुकी है, सार्फिन की जो नुमाइंदा तंजीम है। कोकब इकबाल साहब ने इस हवाले से सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम किसी तौर पर भी कमिश्नर कराची को दूध की कीमतों में इजाफे की हिदायत नहीं करेंगे, बल्कि कमिश्नर कराची से ये मुतालबा करेंगे कि दूध की कीमतों में किसी तौर पर भी इजाफा नहीं किया जाए। 180 रुपये लीटर जो सरकारी कीमत है उस पर दूध फरोख्त होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद शहर में 30 रुपये जायद कीमत यानी कि 210 रुपये इस वक्त दूध फरोख्त हो रहा है। तो जो सरकारी रेट है 30 से 40 रुपये महंगा दूध फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से मुतालबा किया जा रहा है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए महंगाई के अदवार में, और जो महंगा दूध बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। काविश मेमन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।